تو بلا تخیری میں دعوت خطاب بھی دیاں گا. اب آپ ایک نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جی میں کریم رب دا شان بلند ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دعوت خطاب، دعوت محبت، سرمایہ اہل سنت، وقار اہل سنت، سالار اہل سنت، صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب اپنو گزارش کراں گا نورانی وجدانی لسانی خطاب تو ساڈے قلوب و ذہنوں منور فرمان گے. اس تو بعد اگلا شیڈول پھر چلایا جائے. الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے. آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی. ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا. حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی. وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں. زہر آلود فضائیں تھی نمو سیاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں. پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھتی ہے. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتا ہے، بہت بڑا نام ہے. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے. وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا. میرے نبی آتے ہیں تو دوست ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے. اور بھائی جان، یہ میرا اور آپ کا فخر، یہ میرا اور آپ کا اعزاز، یہ میرا اور آپ کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، اور اس کی طبیعت میں عجیب بے چینیاں، اضطراب تھا. زبان حال سے کچھ یوں کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں،
दर्दो गम दी केरियां, अडियां चुक चुक रावां वेखां तेरियां। ये बहीरा राहब है जो रोजाना हुजूर की राहों में उदास खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यशरब आया। उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। तो फिर उलमा ने उससे माजरत भी कर ली कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमी पे टूट जाएंगी। उसने फिर वहाँ उलमा के लिए 300 घर बनाए और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना, और वो घर उस जमात के जो बड़े आलिम शामून थे वो उनके सुपुर्द किया। और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया और एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले जाती हैं। गुजरते इतना कह दिया कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आए तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ जाती है। तुब्बा रोजाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगामे मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूं। और तुब्बा हिजरे रसूल में, याद रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पलके बिछाए बैठी है। फिर मेरे भाई 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। मेरे नबी दुनिया में जलवा फिराज होते हैं। 53 साल मक्का में गुजारे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि सोने मोहम्मद अब मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हुजूर मदीना तशरीफ ले आते हैं। तलाल बदरू अलैना की सदाएं मदीना की सर जमीन में गूंज उठती है। अच्छा, वो खत जो 1000 साल पहले हुजूर के नाम तुब्बा ने लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुंचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। उनका नाम ले तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का एजाज है कि उन्हें हुजूर की मेजबानी का शरफ मिला है। रूमी कहते जब हुजूर उनके घर गए ना तो उन्हें चा चढ़ गया। इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबार शुदस्तो मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। ये खत इन तक पहुंचा। हुजूर मदीना आए तो मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि जब हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले वो खत जो 1000 साल पहले हुजूर के नाम लिखा गया था, तुब्बा का खत पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब किया गया। मंजर बड़ा खूबसूरत है। हुजूर मदीना तशरीफ ले आए, अबू लैला सामने खड़े हैं। मेरे करीम आका अबू लैला को देख करके फरमाते हैं, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूं, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फिर मेरे नबी मोहब्बत की वो कहानी सुनाते हैं। मेरी राहों में दीवाने आए और फिर हुजूर तुब्बा का नाम लेके फरमाते मेरे दीवाने तुब्बा का खत मुझे दे दो। यार ये तुब्बा भी हुजूर की राहों में, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की उदासियां हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला। देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मैं एक जवान का तस्करा छेड़ने लगा हूं। मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे, आंखें रोशन हो जाएंगी। उस जवान का नाम है सुलेमान और उसका ताल्लुक है ईरान के मशहूर शहर अस्फहान से। सुलेमान कहते मेरा वालिद उस शहर का सरदार भी था, सरदारी भी हमारे पास थी, वालिद मजूसी था। अच्छा मैं आपको बताता चलूं ये सुलेमान कौन है। इस सुलेमान को आज जमाना सुलेमान फारसी के नाम से जानता है। सुलेमान कहते मेरे वालिद ने मुझे मजहब की तालीम घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए मुझे बाहर निकाला। सरेरा ईसाइयों का गिरजा घर आया। सुलेमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी जिंदगी देखूं, ये लोग कैसे हैं। फरमाते मैं वहां काफी देर बैठा रहा। रात मर्जी से वापस घर आया तो वालिद बड़े गुस्से में था।
पूछा सुलेमान कहां थे? फरमाते मैंने सच सच बता दिया कि मैं गिरजे में था और मुझे उन लोगों ने मुतासिर किया है और अब उस मजहब की मोहब्बत दिल में रखता हूं। सुलेमान कहते मेरा वालिद डर गया कि कहीं ये मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत को न कबूल कर ले। मुझे मेरे वालिद ने लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। फिर रद्द अमल के तौर पे जिद पैदा हुई, फैसला कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। फरमाते मुझे सबील मिली और मैं मुल्क शाम चला गया। वहां एक आलिम से मुलाकात की, अपने हालात से आगाह किया कि इस मजहब की मोहब्बत यहां मुझे खींच लाई है। सुलेमान कहते मैंने तादम आखिर जब तक वो जिंदा रहा मैंने उसे कहा मैं तिश्ना हूं, मेरी प्यास बुझाओ, और मैंने उसकी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैंने कहा अब जाऊं तो कहां जाऊं? उसने मुझे नसीबैन बेच दिया। फरमाते मैंने वहां आकर के भी उस आलिम की भी बड़ी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो मैं सरापा सवाल बन के उसके भी सामने खड़ा हो गया कि अब जाऊं तो कहां जाऊं? उसने मुझे एक और जगह भेज दिया। सुलेमान कहते मैंने उसकी भी बड़ी खिदमत की। खिदमत का सिला मिलता है भाई, ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह सिला जरूर अता फरमाता है। सुलेमान कहते जब वो मरने लगा तो मैंने कहा अब किस चौखट का भिखारी बनाओगे, अब जाऊं तो कहां जाऊं? उसने कहा सुलेमान बाखुदा अब मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी खिदमत में मैं तुम्हें भेजूं। दिल की नैया डूबने लगी, अंधेरे छाने लगे, ऐसा लगा कि दीवार आ गई। उस आलिम ने जब डूबती नैया देखी तो किनारा देता है, कहता है सुलेमान अब आखिरू ज़मां मोहम्मद का जमाना करीब आ गया है। नखलुस्तान दो जले मैदानों के दरमियान तशरीफ लाएंगे। सुलेमान कहते अगर वो सर जमीन में पालूं तो उस नबी को पहचानूंगा कैसे? कहा उनकी 3 निशानियां हैं। नंबर 1 वो सदका नहीं लेंगे, नंबर 2 वो हदिया कबूल करेंगे, नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कल्ब पे मोहरे नबुव्वत होगी। कहा सुलेमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते मैंने रखते सफर बांधा, दौड़ लगा दी। सरेरा मुझे बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सुलेमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे कि एक जगह पे जाकर उन्होंने मुझे जकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी बड़ी तल्ख होती, कहते बड़े ही धक्के खाए। कहते उन्होंने मुझे एक यहूदी के यहां फरोख्त कर दिया। फरमाते फिर उस यहूदी ने, सुनिएगा, उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहां किया। फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। सुलेमान कहते एक दिन किसी ने आग के कान में सरगोशी की कि दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना, वो प्यारे मोहम्मद दुनिया में जलवा फिराज हो चुके हैं। अब सुलेमान कहते मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते भाई, हिजर की आग में जलते रहे, तड़पते रहे। फिर वो हमायूं घड़ियां आई, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था और खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आके कहता खुदा सत्यानाश करे औसो हजरज का एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहां आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया ना तो पीटा जाऊंगा, लेकिन नाम मोहम्मद की मस्ती तबीयत में ऐसी चढ़ी कि अंजाम से बेनियाज होकर करीब जाके हुजूर का तस्करा छिड़ा तो जालिम ने मुंह पे मुक्का दे मारा। खैर फरमाते मैंने बर्दाश्त किया। रात की तारीकी छाई, मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। ये दीवाना कहां से चला भाई? असफहान से। असफहान से शाम आया, शाम से नसीबैन आया, फिर यहूदियों के हत्थे चढ़ा, दर दर की गुलामी, दर दर के धक्के खाए, आज मंजिल नसीब हो गई। उस आलिम ने जो 3 निशानियां बताई थी वो पेशे नजर थी। कहते मैं खाना लेके गया, मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहां यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है और आप इसके हकदार ज्यादा हैं, इसको कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने वो खाना खुद नहीं खाया, गुलामों को दे दिया। एक निशानी पूरी हो गई। कहते मैं दोबारा फिर हाजिर हो गया, मैंने अर्ज किया हुजूर ये सदका नहीं हदिया है। मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। 2 निशानियां पूरी हो गई, अब एक निशानी बाकी है। दिल थाम के बैठिएगा, मंजर देखिएगा कितना खूबसूरत है। तीसरी निशानी की जुस्तजू में थे। फरमाते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं
जल्दी से पीछे आके खड़ा हो गया कि आज मोहरे नबूवत की ज़ियारत नसीब होगी। कहते जब पीछे आके खड़ा हुआ ना तो मेरे नबी ने पलट के मेरी तरफ देखा, हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां थी, दिल में मोहब्बत की बिछी हुई कायनात थी। मेरे नबी सलमान की तरफ देखते हैं, फिर कमर से चादर उठा देते हैं, चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर देते हैं और आंखों में अथरू उतर आए। सुलमान तड़प गए, मेरे नबी पकड़ करके सामने बिठा लेते हैं। फरमाया सुलमान सुनाओ ना हमारा प्यार तुम्हें कहां से खींच लाया, मोहब्बत की कहानी। फिर कुछ यूं कह दी, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। जज़ाकल्लाह जी, आप ध्यान से बैठ के सुनिए। सुलमान फारसी भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में, उस शाक की बस्ती की उदासियां भी हुजूर की राहों में। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है दोस्त, मुझे बताइएगा क्या तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? और नहीं भाई, सोए थे, बख्त सवल्ला निकला, बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, मदीने से ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए, आंख खुली, माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी, आंख खुलती है, माहौल की ताजगी बता देती है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे मैं और आप जितना भी फख्र करें वो कम है। वो न्याजी कहा करते थे ना कि ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो न्याजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमाते हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दोसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। मेरे भाई ये हमारा एजाज है, ये आपका एजाज है। अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया है जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलूना फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है? काल तिलका उम्मतु अहमद। मूसा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। और भाई आप लोगों की बात हो रही है, 9 सवाल थे। एक सवाल ये भी किया मालिक मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो सदका देंगे और खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती थी तो सदके की कबूलियत की दलील क्या होती? अपना सदका उठा के पहाड़ पे रखते, पहाड़ से आसमान से आग आती और वो उसको उचक के ले जाती। ये थी सदके की कबूलियत की दलील। और जिसका कबूल ना होता वो वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता। कितना बदनसीब है कि अल्लाह ने सदके को कबूल ही नहीं किया। और भाई हमारा माल हलाल का है या हराम का, हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से, लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा, जैसे भी कमाया है ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिज़्क़े हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल है। पहली मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। और भाई उनका कबूल नहीं होता था तो रुसवा होते थे, अगर कबूल होता था तो वो खा नहीं सकते थे। और इधर कहानी क्या है? सदका दिया खुद खाया, अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है याकुलून अल फ़ैआ, वो माले फ़ै खाएंगे। एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फ़ै। माले गनीमत जंग के बाद जो दुश्मन से माल हासिल होता है वो मुजाहिदीन में बांट दिया जाता है। और माले फ़ै उस माल को कहते हैं जिसमें जंग की नौबत ना आए, दुश्मन मारे खौफ के वैसे ही दुम दबा के भाग जाए, बगैर मुशक्कत जो माल हासिल होता है उसको माले फ़ै कहते हैं। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे, नेकी की नहीं, नेकी का इरादा। दुखियों के काम आऊंगा, बेवाओं के काम आऊंगा, कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेंगी। यह है नेकी का इरादा। भाई यहां बैठ के नेकी का जज्बा पैदा हो गया,
लाखों नहीं करोड़ों अल्लाह ने दिया है, एक नहीं 2 4 5 6 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, दौलत कितनी है हिसाब शुमार ही कोई नहीं। लेकिन कहानी यह है कि दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर है, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें आती हैं, गली मोहल्ले में तड़पते सुलगते लोग मेरे सामने से गुजरते जो नाने शबीना को तरसते हैं, बेवा के भी घर, यतीमों के भी घर। ओ भाई, यहां बैठ के तबीयत में नेकी का नशा पैदा हुआ, आज मर गया कल दूसरा दिन कौन याद करेगा, औलाद तो सांप बन के बैठ जाएगी। यहां नेकी का जज्बा पैदा हुआ कि दौलत भाई पे लुटाऊंगा, दौलत गुराबा पे लुटाऊंगा, युतमा पे लुटाऊंगा, मसाकीन पे लुटाऊंगा। यहां बैठ के नेकी का जज्बा पैदा हुआ है। अभी यहां से उठ करके भाई को सीने से नहीं लगाया, यहां से उठ करके किसी के घर में राशन नहीं डाला, यहां से उठ करके किसी के अथरू नहीं पूछे। ओ भाई, यहां बैठ के नेकी का जज्बा पैदा हुआ है। आप जानते हो इसकी कदर अल्लाह के यहां क्या है, इनकी कदरें क्या है, सुनते चलिएगा। एक शख्स के नामे अमाल में हज लिखा होगा, वो अर्ज करेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था, अल्लाह बड़ा ही तड़पता था, फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है, वो नेकी का इरादा करेंगे, इरादे से नेकी अता होगी, वो नेकी एक करेंगे लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया अल्लाह मैंने ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, गुनाह किया नहीं प्रोग्राम बनाए, रात शराब खाने में जाके शराब के जाम उड़ाएंगे, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आ गया, मैं तिनको के नशे मन में मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मरमर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं, वो ऐशो इशरत में रहे। क्या ख्याल आया मनहूस कि रहजन बनूंगा, लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा, लोगों से छीन के खाऊंगा। यह है गुनाह का इरादा। क्या यहां फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और इसके खाते में गुनाह डाल दो? और भाई वहां नेकी का जज्बा था उसी वक्त अता हुई, तो क्या गुनाह की नहुसत, गुनाह का इरादा, क्या इस वजह से भी लामे अमाल में गुनाह लिखा जाएगा? ना भाई, रोक लिया गया। ये जो कदम सैल में घर की तरफ उठ रहे हैं हो सकता है कि अल्लाह के घर में आ जाए, और ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर राजी हो जाए। गुनाह के इरादे से गुनाह लिखा, फितरत में भूल जाना है। अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा, और अगर कोई नदामत के अथरू उसकी चौखट पे लेके आ जाए कि ये हुए गुनाहों पर शर्मसार हो जाए, हिजरत करके पलट आए, ये अल्लाह का वादा है दोस्त, अल्लाह उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। एक शख्स ने 20 साल इबादत की और 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं ना, मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए, मौत का वक्त समझ लो करीब आ गया है। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बिछे हुए सफे मातम पैगामे मौत देते हैं। दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो तड़प गया, कहते हैं अल्लाह अगर मैं लौट आऊं तो क्या सलूक होगा। हातिफ से आवाज आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मुझे नाराज किया, मेरे हुक्मों को तोड़ा। आवाज क्या आती है, मैंने तेरा इंतजार किया। आवाज आई, तेरा रब रहीम भी है, करीम भी है, जा मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। आज सावी ने खुले रावी ने, आज कोई माजरत करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लामा सैदी लिखते हैं शारे मुस्लिम, एक बूढ़ा हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी जवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा। हातिफ से आवाज आती है, ला लब्बैक। बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साथ नौजवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा पुत्र ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। जवान कहता है बाबा फिर भी आते हो? कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। आज सावी ने खुले रावी ने, आज कोई माफी मांगेगा तो माफ करेगा। आज वो पिछले पहर पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला,
खुला है दरवाज़ा। आज माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन सांसें टूट गई फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। वक्त पे काफ़ी है। एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का। उस दिन काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन जवानों, उस दिन यहया अलैहि सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन जिंदगी होगी भाई। आज वक्त है, आज माजरत करेंगे। अल्लाह आपको जजा दे। बैठ के ध्यान से गुफ्तगू सुने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज वक्त है, आज माजरत करेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। मूसा अलैहि इस्लाम ने अर्ज किया, मालिक मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। यार 9 सवाल थे और हर सवाल पे एक ही जवाब आया, और आखिर पे जो अर्ज किया वो मैं अर्ज करता हूं। अर्ज क्या करते, मालिक मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। फिर कहा अल्लाह ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो सदका देंगे, खा भी जाएंगे, अजर भी खुद ले जाएंगे, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है, वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल और हर सवाल पे एक ही जवाब, और आखिर पे अर्ज करते हैं, ठीक है अल्लाह वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें भाई ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। उन्होंने 63 बरस इस उम्मत में गुजारे और सारी जिंदगी उम्मती उम्मती पुकारा। फजल बिन अब्बास कहते, जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी, मेरे नबी का रंग मुतगय्यर हुआ, पैगाम लेते जाइएगा। मजमा सहाबा से उठे, बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया, मिंबर उदास, गलियां उजड़ गई। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते, शर्फ मकान का नहीं मकीन का होता है। यसरब था बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, ज़हाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की, वहां घर बन गए। चरवाहा मिला एक, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा। उसने कहा कि जब ये बात की तो उसने कहा इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा। रूमी वो गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त चोपा मरमुरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस्त, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मीनालत कसी लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबल सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़ के अर्ज किया, हुजूर गुलाम आए हैं, 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मदीना उदास खड़ा है, तशरीफ ले जाइए। फरमाया उतनी देर तक अबू बकर सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में वादा नहीं कर देता। सैयदा फातिमा ज़हरा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। अर्ज कर दिया बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए आप मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते, बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयद अपने अल्लाह से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों को हराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा क़यामत आ गई। रूमी कहता फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां,
जुमला बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। ओ भाई, उन्होंने इतना प्यार दिया, हमने क्या किया? तखय्युलात में गोता लगे तो खुद को खींच के 2 लम्हों के लिए मैं और आप उस गार में ले चले। एक जानिब थोड़ी देर के लिए खुद को खड़ा करें और दूसरी जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखो। मोहब्बत तो अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। माजरत से कहूँगा आज मैं और आप बगौर देखे तो हम दावे मोहब्बत में कमज़ोर नज़र आते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये खोखले नारे हो गए। उन्होंने इतना प्यार दिया, हमने उसके सिले में क्या दिया? जवान है चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्याल सलाह की सदाएं फिजा में गूंजती हैं, कान पे जू तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। हम किसी को आखिरत की बात सुने तो लोग लड़ते हैं, वो कहता है मौलवी तकरीर अपने को रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। मैं कहता हूँ ओ भाई, कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना, हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशों को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ओ कोई पता नहीं। और थोड़ी सी जिंदगी है जवान, पलट के आना कोई नहीं। आपके गांव का गोया कोई वापस आया? हमारे बड़े चले गए, वापस आए? हमने भी नहीं आना। लंबी लाइन में खड़े हो, बारी आने वाली है, धक्का लगने वाला है। वो जन्नत का बाग है, वो जहन्नम का घड़ा है। अल कब्रु बैतुद्दियान, वो कीड़ों का घर है। और भाई, अमल की राहें रूठ गईं। अगर मैंने और आपने खुद को हुजूर की गुलामी में खुद को पेश न किया, अमल की राहों पे खुद को न थकाया, तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और भाई, मेरा और आपका एजाज़ है कि हम हुजूर के बन के आए। भाईजान, जिस कदर एजाज़ बड़े हों, शरफ बड़े हों, उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। आइए मैं और आप उन तकाज़ों को पेश नज़र रख के ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारे, ताकि हमसे हमारा मालिक और हमारे महबूब राज़ी हो जाएं। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अजीज़म भाई का, जिसकी दावत पे आज मैं यहाँ हाजिर हुआ। उसकी मोहब्बतें मैं कभी भी फरामोश नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उसकी मोहब्बतें कबूल फरमाए। आप बड़ी मोहब्बत से आपने बातें सुनी। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बे दे, और हमारे माँ बहन, हमारे वतन अज़ीज़ का बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत लहजा। बिला मुबालगा, मेरी आदत है, मैं मुबालगे से काम नहीं लेता। मैंने सुना हुआ है और मेरी भी आरज़ू थी कि मैं बैठ के सुनता, लेकिन एक वादा था, अगर वो वादा ना होता तो मैं साजिद भाई ज़रूर बैठता। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गदाज़ में ये यकीनन असलाफ़ की रवायात को बरकरार रखे हुए हैं, उनके अमीन है। अल्लाह ताला इनके सोज़ो गदाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,